اور اب خبریں تفصیل سے۔ نیوز 18 نیٹ ورک کی طرف سے کیے گئے ایگزٹ پول پر سیاسی پارٹیوں نے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پردیش بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس ایگزٹ پول سے صاف ظاہر ہے کہ بی جے پی مرکز میں سرکار بنانے جا رہی ہے۔ پارٹی کے ریاستی صدر رویندر رائنا نے کہا کہ بی جے پی کی جیت کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کو جاتا ہے، جنہوں نے عوام کی بہبود کے لیے کام کیا۔ ادھر پردیش کانگریس کا کہنا ہے کہ اصل نتائج تو ووٹوں کی گنتی کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ پارٹی کے ریاستی ترجمان اعلیٰ رویندر شرما نے کہا کہ ایگزٹ پول پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کے اندر اس سمے بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی صاحب کی زبردست لہر ہے۔ میں تو یہ کہوں گا ایک سونامی آئی ہے پورے ہندوستان میں، اور 130 کروڑ ہندوستانیوں نے مل کے نریندر مودی صاحب کو پھر سے ووٹ کیا ہے۔ اور سبھی نیوز چینلز کے جو ایگزٹ پول آ رہے ہیں، جو سروے انہوں نے جاری کیے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ انڈسپیوٹڈ لیڈر اس ملک کے اندر اگر کوئی ہے تو نریندر مودی صاحب ہیں، جو جموں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، گجرات سے لے کے اروناچل، نارتھ ایسٹ تک جن کا اس سمے ولولہ ہے، ان کا نام چلتا ہے، اور ایک زبردست لہر ہے نریندر مودی صاحب کی۔ اور یہ ملک کے لیے اچھا ہے۔ مودی صاحب نے جو ڈیولپمنٹ کے کام شروع کیے تھے، انہوں نے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس ایجنڈے کو لے کر کام کیا۔ جو لیڈیز ہیں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان انہوں نے اس ملک میں لایا۔ گاؤں، غریب، مزدور، کسان، پچھڑے، دلت، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے لیے کام کیا، اور بنا مذہب و ملت، بنا کسی ڈسکریمنیشن کے مودی صاحب نے 5 سال کام کیے۔ اسی لیے اس بار ان کو پہلے سے بھی زیادہ سیٹیں مل رہی ہیں۔ نیوز چینل والوں کو مبارکباد، ان کا اپنا انومان ہے، اپنی محنت ہے، مگر ہم انتظار کریں گے 23 تاریخ تک۔ ابھی ہم کو جو وشواس ہے کہ جنتا نے ایسا فیصلہ نہیں دیا ہے اور پورن بہمت کسی کو نہیں ہوگا۔ ایک ہنگ پارلیمنٹ کی سمبھاونا ابھی بھی برقرار ہے، اور پچھلی بار بھی جب چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان کے چناؤ ہوئے تھے تو آنکڑے جو ہیں وہ انومان کے مطابق، جو ایگزٹ پول کے مطابق نہیں تھے۔ تو اس لیے ابھی تو ہم غلط بھی نہیں ٹھہرانا چاہیں گے، لیکن ہمیں وشواس ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور کافی جو ہے اس میں انتر ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور پرکریا جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کی سمبھاونا ہے کہ کوئی وکلپ جو ہے وہ نکلے، مگر جنتا جناردن کا فیصلہ پرجاتنتر میں سربمانی ہوتا ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ضرور ہم مانیں گے، لیکن ابھی وشواس نہیں ہے کہ ایسا ورڈکٹ ہوگا۔ اور کیونکہ 5 سال کے مودی جی کے کاریہ کی کوئی اپلبدھی تو سامنے نظر نہیں آئی، اور انہوں نے پاکستان اور باقی چیزوں پہ چناؤ لڑا، آتنکواد یا دھرم کے نام پہ بھی کئی باتیں کی گئی۔ آج بھی وہ کیدار ناتھ جی کے درشن میں بیٹھے جب دیش میں چناؤ ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے پربھاوت کرنے کے کئی ہتھ کنڈے کیے۔ اور شمالی کمانڈ کے جی او سی این چیف لیفٹیننٹ جنرل رنبیر سنگھ کا کہنا ہے کہ مقامی نوجوانوں کے ملیٹنٹ صفوں میں شامل ہونے کا معاملہ تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ جنرل رنبیر سنگھ نے ادھمپور میں کہا کہ اس سال 86 ملیٹنٹوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ تقریباً 20 ملیٹنٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی نوجوانوں کو اصل دھارے میں واپس لانے میں بھی کامیابی ملی ہے۔ During this year, we have been able to neutralize 86 terrorists so far, and our operations for neutralizing more of them continue in the same manner. There are nearly over 20 of them we have been able to apprehend, and so many more, the numbers which I won't like to disclose, whom we have been able to get around with the parents, with the teachers, with the elderly, and be able to get around with the children who are trying to pick up arms. We have been able to impress upon them the futility of picking up the gun and joining the national mainstream. A large number of them have been able to come back and join the national mainstream. بانڈی پورہ مانتری گام شیخ پورہ کے سرکاری استاد کی لاش آج لہروال پورہ کے مقام پر جھیل ولڑ سے برآمد کی گئی۔ واضح رہے مشتاق احمد لون نامی یہ سرکاری استاد 13 مئی کو اپنے اسکول میں ڈیوٹی انجام دینے کے بعد پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ مشتاق کی لاش جھیل سے برآمد ہونے کی خبر پھیلتے ہی ان کے آبائی گاؤں میں صف ماتم بچھ گئی، اور لوگوں نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا۔ مشتاق کی لاش کا پوسٹ مارٹم ضلع ہسپتال بانڈی پورہ میں کیا گیا۔ اس کے علاوہ سری نگر میں فورینسک ماہرین بھی طلب کیے گئے ہیں، جنہوں نے لاش سے کچھ ضروری نمونے حاصل کیے۔ دیر اثنا سابق اسمبلی ارکان عثمان مجید نذیر گریزی اور فقیر محمد خان نے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے اس معاملے کی جامع جانچ کا مطالبہ کیا۔
जबकि महलूक के भाई ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने मुश्ताक के लापता होने के मामले को संजीदगी से नहीं लिया। उधर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल बांडीपुरा का कहना था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मुश्ताक की मौत की वजह सामने आएगी, जबकि एसएसपी बांडीपुरा राहुल मलिक का कहना था कि पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की छानबीन कर रही है। आज सुबह 9 बजे के करीब पुलिस स्टेशन बांडीपुरा ने यहाँ पे एक डेड बॉडी लाई। इसका नाम मुश्ताक अहमद वल्द अब्दुर्रहमान लोन है, मादरीगाम का रहने वाला है। ये कुछ चंद दिनों से मिसिंग था। इसकी डेड बॉडी उन्हें वुलर लेक के पानी से बरामद करके यहाँ लाई। यहाँ पे एक टीम बनाई गई डॉक्टरों की, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। एक टीम यहाँ पे हमने बनाई स्पेशलिस्ट की, और हमारे कुछ एक्सपर्ट आए वहाँ से मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से, उनके वहाँ पे फॉरेंसिक ये होते हैं स्पेशलिस्ट, वो आए यहाँ। और जो ही वहाँ से एफएसएल से या बाकी पैथोलॉजी वालों से आती है, उसके बाद अभी पुलिस के हवाले कर दी और आपसे भी शेयर कर दी। बात ये है कि पुलिस ने आज तक जो भी इन्वेस्टिगेशन की वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई होगी तो शायद आज ये हादसा नहीं होता। दहाड़े ये किडनैपिंग हो गया, पुलिस ने आज तक कोई सुराग नहीं लगा, जिससे आज से यहाँ हादसा हो गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे हमें शक लग रहा है। अब हमें सिर्फ एसपी साहब है जिससे हमें बात की, अगर हो सके तो। देखिए, ये हमें रिपोर्ट जो है इसकी 17 को मिली थी कि 13 से जो है मिसिंग है, और इमीडिएटली हमने इसकी सर्च स्टार्ट की, और उसमें जो है हमने डिफरेंट एंगल्स पे काम किया। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में वुलर से इसकी डेड बॉडी जो है रिकवर हुई है, और जैसे डेड बॉडी रिकवर हुई हमने सेक्शन 174 CRPC में कार्रवाई जो इनिशिएट की है, और अभी हमने डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में रखी हुई है। और हम इसका जो है टीम ऑफ डॉक्टर से जो है मेडिकल बोर्ड हमने कंस्टिट्यूट करा है जो इसका पोस्टमार्टम करेंगे, और वी हैव आल्सो रिक्वेस्टेड द मैजिस्ट्रेट टू बी प्रेजेंट, और उसके साथ हम इसे सारा जो प्रोसेस है उसको वीडियोग्राफ कराएंगे। और इसके अलावा हम एक फॉरेंसिक मेडिसिन का एक्सपर्ट हमने रिक्वेस्ट किया है GMC श्रीनगर से, तो ही इज आल्सो ऑन वे, तो वो भी आ रहा है। तो ये कि फुल फ्लैज जो है मेडिकल टीम जो है इसमें कंस्टिट्यूट करके वो इसका पोस्टमार्टम करेगी, और वो पता लगाएंगे कि जो इनकी जो है डेथ के एक्चुअल रीजंस हैं क्या। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बांडीपुरा इस्मत रेजी वाक़े को इंतहाई घिनौनी हरकत करार दिया है और कहा कि ये शर्मनाक हरकत माह रमजान में अंजाम दी गई है। मौलवी उमर फारूक ने अपने वालिद मीरवाइज मौलवी फारूक को 29वीं बरसी के मौके पर राजौरी कदल में एक दीनी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। मीरवाइज ने तमाम मजहबी रहनुमाओं को इखलाकी इक़दार को फैलाने और इस्लामी तालीमात से लोगों को वाकिफ कराने के लिए मुतहिदा कोशिशें करने पर जोर दिया। पूरी कौम ये वाक़यात बांडीपुर संदर आई, सुमरस आई, उलमा भी ऐसे एम ब्रूठे ऐसे बीच में ऐसे उस कुर्मुती का पंजाबी फैसले की ये माह रमजान की मुबारक रहत ऐसा करो, इस बिल्कुल इस करो कोशिश, इस करो वक्फ तिमो इशूजो खतर यम जन सानि समाज खतर नासूर बने तिकाज किरदार साजी उन अमल युसु सारी खुद अहम तरीन अमल मुसलमान बच्चे नौजवान कपुर बोर्ड तमिस में इस्लामी किरदार इस्लामी जज्बा इस्लामी असूल तमिस पता दीन वत दीन कत तमिस पे वाजे अम पे कर गलत चीज की। मगर अफसोस कि माह रमजान मजीद तम कह आय वाक़यात पेश यम पूरे मज तम सह गम तो मातम लहर गई कि जन पज पे यन उलमान हज यन फजलान हज यम जन सही दाई दीन रूद तमिक मस्कन रूज औलियान हज तम खुदायस नेकुकार बंद, मगर ये हालात तम ग इंसान हैरान गसान क्या ये मज हालात वाक़ात। जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में PDP वर्कर मोहम्मद जमाल बट जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में दम तोड़ बैठे। मोहम्मद जमाल बट पर कल शाम नामालूम मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई थीं और वो शदीद जख्मी हो गए थे। नामालूम अफराद ने मोहम्मद जमाल बट के घर में घुसकर उन पर हमला किया था। बट को जिला अस्पताल कुलगाम में दाखिल कराया गया, जहां से उसे श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। जमाल के पसमानदगान में अहलिया के अलावा 5 बच्चे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
टाइम था, मैं उस टाइम दीदी के घर गया था, वो दूसरे मोहल्ले में रहती है, और उसी टाइम जो ही इफ्तार ख़त्म हो गया, मेरा फादर जो है वो फ़ोन चार्ज लगाने गए थे दूसरे कमरे में। अनफॉर्चुनेटली किसी अननोन गनमैन ने उनको अंधाधुंध गोलियाँ चलाई। बाद में हमें पता चला कि हमें फ़ोन किया गया ऐसा वाक़ा हुआ। हम यहाँ पहुँचे तो उसको रेफ़र किया गया था डिस्ट्रिक्ट कुलगाम हॉस्पिटल, वहाँ से उसको फर्स्ट एड दिया गया, उसके बाद उसको सिक्किम मुंतकिल किया, वहाँ उसकी हालत नाजुक बता दी गई, और अनफॉर्चुनेटली अभी फ़ोन आया कि नो मोर। चाहे जो भी मुलज़िम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि लोकल ही हो सकता है। उसको पूरा वाक़या था कि ये दूसरे कमरे, इस कमरे से दूसरे कमरे में कब किस टाइमिंग है वो सेम रही, इसलिए इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो मेरे फादर के कातिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। भदरवा में आज दिन में कर्फ्यू में ढील दी गई। कर्फ्यू में नरमी मिलने पर बाजारों में लोगों का हुजूम देखा गया। लोग जरूरी अशिया की खरीदारी करते नजर आए, ताहम वहां इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रहीं। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। तहसीलदार भदरवा जीशान ताहिर ने बताया कि सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही कर्फ्यू बरकरार रखने या हटाने से मुतल्लिका कोई फैसला किया जाएगा। इसी दौरान मामले के जांच अफसर मोहम्मद अनवर ने जाए वाकये का दौरा किया और मकामी अफराद से जांच में ताउन करने की अपील की। डोडा के मरमट इलाके में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। गोहा के मंगोटा जा रही रेत से लदी एक टिप्पर सड़क से फिसल जाने से 2 अफराद हलाक हुए हैं। मकामी अफराद ने उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। महलूकीन की शिनाख्त पुलडोडा के रहने वाले ड्राइवर परवेज अहमद और मरमट के नईम अहमद के तौर पर की गई है। पैलेट गन का शिकार हुए कई अफराद ने आज श्रीनगर में खामोश एहतजाज किया। पैलेट गन्स विक्टिम्स एसोसिएशन के बैनर तले ये एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने पैलेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने और मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इन दावों को भी तरदीद की है कि वो हुकूमत की किसी भी खिदमात से इस्तिफादा कर रहे हैं। दिन ब दिन इस ट्रस्ट में दिन ब दिन विक्टिम्स आ रहे हैं। हम ऑलरेडी जो 1332 विक्टिम्स थे हमारे ट्रस्ट में, हम उनका अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख पा रहे थे, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट पैलेट गन का यूज होने दे रही है। कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने रियासत में असेंबली इंतखाबात में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी को छोड़कर रियासत की सभी सियासी पार्टियां बिला ताखीर असेंबली इंतखाबात कराने के हक में हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर चुनाव को लगातार टाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि यहां चुनाव हो। उन्होंने बार बार ये कहा कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, और इस बात की जो है दोबारा दोहराया गया। संगठन मंत्री उनके जो है उनके द्वारा ये कहा गया कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, और ऐसा लगता है कि फैसला भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिया जाता है और इलेक्शन कमीशन जो है उस फैसले का ऐलान करता है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर के नौजवान और बच्चे मार्शल आर्ट्स की जानिब भी रागिब हो रहे हैं। जनूबी कश्मीर में भी मार्शल आर्ट्स को तक़वियत बख्शने के लिए आकिब मजीद नामी नौजवान अंत तक कोशिश कर रहा है। पेश मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। अनंतनाग के आकिब मजीद पोस्ट ग्रेजुएशन के तालिब इल्म हैं, मगर वो मिशन मार्शल आर्ट्स पर काम कर रहे हैं। आकिब जनूबी कश्मीर जैसे शूरज़दा इलाके में मार्शल आर्ट्स को आम करने के लिए अनथक कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जनूबी कश्मीर में मार्शल आर्ट्स का बुनियादी ढांचा मुहैया न होने के बावजूद आकिब इसको यहाँ एक खास मुकाम दिलाने में कामयाब हो गए हैं। स्कूलों में बच्चों को मार्शल आर्ट की तरबियत देने के साथ साथ आकिब ने कोलगाम और अनंतनाग में मार्शल आर्ट्स के क्लब कायम किए हैं।
کیا. 12th میں میرا انیشیٹو یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے جو ہیں یہاں پہ اپنا ٹیلنٹ مطلب وہ دکھا سکے, ان کو ایک پلیٹ فارم ملے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکے. اور تب مطلب اسٹرگل بہت تھا. میں نے گھر سے ٹریننگ اسٹارٹ کی, جگہ نہیں تھی, پھر اسٹیڈیم شفٹ کیا, پھر کہیں اسکولز میں شفٹ کیا. اکوپمنٹس ہمارا بیسک جو تھا وہ لیک کرتا تھا. پھر دھیرے دھیرے جو فیس ہم لوگ کلیکٹ کرتے تھے اس سے تھوڑا تھوڑا اکوپمنٹ کرتے آج ہم نے اس اکیڈمی کو فلی انفراسٹرکچرڈ اکیڈمی بنایا ہے. عاقب کا کہنا ہے کہ کشمیر میں نامساعد حالات کی وجہ سے یہاں کے نوجوان ذہنی تناؤ کے شکار ہو رہے ہیں, اور ایسے میں مارشل آرٹس ایک ایسا کھیل ہے جس کے ذریعے صحت مند سماج کی تعمیر ممکن ہو سکتی ہے. عاقب نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ساتھ کم سن بچوں کو بھی باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں. کم وسائل کے باوجود عاقب کا خواب یہی ہے کہ مارشل آرٹس کو مناسب مقام دلایا جائے. ساؤتھ کشمیر میں اتنا مارشل آرٹس کی طرف نہیں تھا. عاقب سر نے, ہم ان کا بہت شکر گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے مارشل آرٹس ساؤتھ کشمیر میں لایا. ہماری اکیڈمی سے 10-12 پلیئر انٹرنیشنل بھی کھیل کے آئے جنہوں میں آدھوں کا گولڈ ہے اور آدھوں کا سلور ہے. اور میں یہاں پنچنگ ککنگ سیکھی, چال کی, مواشی اور تھرسٹس. میں اسے سیفٹی, ڈیفینس, اسٹیمنا اور انرجی ملتی ہے. میں یہاں پر فائٹ سیکھتی ہوں. کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. خاص کک, مواشی کک, چار کک. اننت ناگ سمیت جنوبی کشمیر کے مختلف حصوں میں رہائش پذیر لڑکیاں بھی اب آہستہ آہستہ مارشل آرٹس کی جانب راغب ہو رہی ہیں. عاقب کے مطابق سرکاری سطح پر مارشل آرٹس کو فروغ دینے کے لیے معقول اقدامات نہیں ہو رہے ہیں. خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کے چلتے مارشل آرٹس ان کے لیے سیلف ڈیفینس کا بھی بے حد اہم ذریعہ ہے. اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ آج کل لڑکیوں کا رول بڑھتا جا رہا ہے. لڑکے بھی کھیلتے ہیں مگر اب لڑکیوں کا جو رول ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کے زمانے میں, کیونکہ ڈسپلن رہتا ہے, ہمارا اسٹیمنا رہتا ہے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سیلف ڈیفینس رہتا ہے لڑکیوں کے لیے. جو اسٹیمنا زیادہ بلڈ اپ ہوتا ہے اس میں, تو زیادہ سیلف ڈیفینس. آج لڑکیاں مطلب کچھ نہیں کر پاتی ہے خود کی طرف, مطلب وہ اپنا سیلف ڈیفینس نہیں کر پاتی ہے. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں لڑکیوں کو آئے, کھیلے, مارشل آرٹ سیکھے اور سیلف ڈیفینس خود کا کر سکے. جتنے بھی بچے یہاں پہ انٹرنیشنل میڈلسٹ نکلے ہیں وہ سب اسی اکیڈمی کے تھرو نکلے ہیں. اسی اکیڈمی کے تھرو انہوں نے انٹرنیشنل کھیلا ہے, اور 8 بچے ابھی تک انٹرنیشنل گئے, 8 کے 8 میڈلسٹ ہے. تو گورنمنٹ کا وہ رول یہاں پہ نہیں رہا. تو آئی جسٹ وانٹ کہ اب گورنمنٹ مطلب اتنا یہاں پہ ایکسپوجر ہوا ہے. نیئر اباؤٹ مور دین 10,000 اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلا ہے ہمارے تھرو. مور دین 2,500 اسٹوڈنٹس نے اسٹیٹ لیول کھیلا ہے. مور دین یوتھ سروسز ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارے کاؤنسل جو ہے وہ یہاں پہ انیشیٹو اٹھا. یہاں انڈور ہال اگر ہوتا, انڈور ہمارا انفراسٹرکچر ہوتا, تو شاید زیادہ سے زیادہ بچے اس میں انوالو ہو جاتے. تاریخ کے مطابق کشمیر میں مارشل آرٹس کا چلن زمانہ قدیم سے موجود ہے. یہ تکنیک انسان جنگلی جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے عملاتے تھے. یہاں کے قدیم حکمراں بھی اپنے سپاہیوں کو باقاعدہ مارشل آرٹس کی تربیت دیتے تھے. اس کے باوجود یہ فن جدید زمانے میں پروان نہیں چڑھ سکا, اور ایسے میں عاقب کی کوشش کشمیر میں بے حد اہم پہل ہے, اور ایسے نوجوانوں کو ہر سطح پر حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہے. اننت ناگ سے مدثر قادری کی رپورٹ. ضلع پلوامہ میں انتظامیہ نے پوسٹ کی کاشت کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی ہے. نیوز 18 اردو کی جانب سے حال ہی میں ضلع پلوامہ میں پوسٹ منشیات کی کاشت میں اضافے کی خبر نشر ہونے کے بعد ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر سعید عابد رشید نے پورے ضلع میں پوسٹ کی کاشت کو تباہ کرنے اور کاشت کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی تھی. اس ضمن میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے. اس معاملے پر بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے. ابھی تک 150 کنال اراضی پر پوسٹ کو تباہ کیا گیا ہے, جبکہ کاشت کرنے والے 100 سے زائد افراد کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے. پہلی بار انتظامیہ نے پلوامہ میں منشیات کے خلاف ایسی کارروائی انجام دی ہے جس کے تحت کاشت کرنے والے افراد کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا رہی ہے. ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر سعید عابد رشید نے کہا کہ اس سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے کارروائی بدستور جاری رہے گی. اس بابت ایڈمنسٹریشن نے سخت ترین نوٹس لیتے ہوئے تقریباً 100 سے زائد لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا ہے.
इस जुर्म में, पॉपी कल्टिवेशन के जुर्म में। अलावा ازیں 150 कनाल के करीब इसको बर्बाद किया गया है। जहाँ जहाँ भी पॉपी कल्टिवेशन है, जहाँ जहाँ भी किसी लैंड ओनर के ऊपर उसकी ज़मीन के ऊपर पॉपी कल्टिवेशन है या शामलात ज़मीन के ऊपर भी कोई कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। हम सीजर करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे, प्रॉपर्टी भी ज़ब्त करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ज़रूरत इस अम्र की है कि एक सोशल मूवमेंट चलाई जाए मंशियात के ख़िलाफ़, और ये चूँकि हमारी आने वाली नस्लों को इम्पैक्ट करता है, मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों से कि इससे गुरेज करें, पॉपी कल्टिवेशन से, अफ़ीम के प्रोडक्शन से गुरेज करें, वरना एडमिनिस्ट्रेशन सख्त तरीन कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगी। रियासती गवर्नर के सिक्योरिटी सलाहकार विजय कुमार ने सोगाम कुपवाड़ा का हंगामी दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने लोलाब में ज़ेर तामीर अस्पताल के काम का अज़ खुद जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका एजेंसी को हिदायत दी कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर ज़ेर तामीर अस्पताल का काम मुकम्मल करे। इसी दौरान सिक्योरिटी सलाहकार ने जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ भी मीटिंग की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने जिले में तामीराती कामों का खाका पेश किया और ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों के हवाले से जानकारी फराहम की। लोलाब का लोग तो बहुत अच्छा है, इनसे मिलने के लिए मैं आया था। 2-3 समस्या उन्होंने मुझे बताया, वो निपटने के लिए हम गवर्नर साहब का कंसल्टेंस करके हम करेंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू में यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन के दौरान कश्मीरी पंडित बरादरी के मुस्तकबिल और उनके हुकूक पर तबादला ख्याल किया गया। कन्वेंशन में कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखने वाले कई लीडरों, समाजी कारकुनों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर बरादरी ने अपना ये अहद दोहराया है कि पंडित बरादरी की शिनाख्त को बहाल करने और बरादरी को सियासी और माशी हुकूक दिलाने के लिए हमतन कोशिशें की जाएंगी। इस मौके पर 46 कोऑर्डिनेटरों का इंतखाब भी अमल में लाया गया, जो पंडित बरादरी के सियासी हुकूक की तर्जुमानी करेंगे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कश्मीरी पंडित बरादरी को सियासी अमल में रिजर्वेशन देने और उनके हक़ राय दही के इस्तेमाल के अमल को आसान बनाने का मुतालबा किया। की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि पूरे पिछले 30 साल से हमें पॉलिटिकली नेगलेक्ट किया गया है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हम कहे, चाहे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, हमारे को नज़रअंदाज किया गया। जब तक कि हमें अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेंगी, जब तक हमारे लिए रिजर्व कोटा नहीं रहेगा, तब तक ये जंग हम लड़ते रहेंगे। और आपके माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये कश्मीरी पंडित अपने बलबूते पे लड़ेगा, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लड़ेगा। उम्मीद रंगमंच के यौम तासीस के मौके पर जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अभिनव थिएटर जम्मू में मुनक्किदा इस तकरीब के मौके पर मारूफ अदीब स्वर्गीय प्रेमनाथ धर का तसनीफ करदा कश्मीरी फोक ड्रामा जेवे गोबर पेश किया गया। इस मौके पर काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट जम्मू टी.के. बट मेहमान खुसूसी थे। मुंतजमीन का कहना है कि ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद का मकसद कश्मीरी जबान और अदब को फरोग देना है। उम्मीद का 12वां फाउंडेशन डे है, इसके और हमने ये फोक प्ले किया है जो कि 1961 में लिखा गया है। उसके बाद ये ऑलमोस्ट 58 ईयर्स के बाद दोबारा हो रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा अटेम्प्ट किया है हमने कि फोक प्ले करने का। सो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा सबका और उम्मीद है इसको हम बहुत जल्दी श्रीनगर में भी करने वाले हैं। नगरोटा जम्मू में आज एक यज्ञ का एहतमाम किया गया। हांगुलगुंड कश्मीर के स्वामी मिर्जा काक के निर्वाण दिवस के मौके पर मुनक्किदा इस यज्ञ में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। स्वामी जी के इस स्थानपन पर कल शाम से शुरू हुए इस यज्ञ की पूर्ण आहुति आज दी गई। इस मौके पर आलमी अमन खासकर रियासत जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। वाज़ेह है स्वामी मिर्जा काक कश्मीर के एक नामवर संत गुजरे हैं, जिन्होंने सच्चाई, भाईचारे और अमन का दर्ज दिया है। हैं जो पथ प्रदर्शक हैं, जो किसी को भी राह दिखा सकते हैं। पकुन गछ बजवती कंथव गोर कथी रोमुत ये अथी पान राम राम। तो इन्हें बड़े रास्ते को ही चलना चाहिए।
बड़ा गुरु ही पकड़ना चाहिए, बड़ा आदमी ही पकड़ना चाहिए, बड़ी चीज़ ही पकड़नी चाहिए, उसी से आपकी राह हमवार हो जाएगी, शॉर्टकट से नहीं हो जाएगा ये। तो इसने बड़े बड़े ऐसे किए हैं, बाकी करामात करने में ये करामात नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने ऐसी कुछ करामातें की हैं जिससे हिल जाता है सारा समाज ये सुनकर। कुंजर के क्रिकेट ग्राउंड में कुंजर प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। इस टूर्नामेंट का एहतमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने किया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक रियासती वजीर जावेद अहमद डार मेहमान खसूसी थे। एनसी लीडर शौकत अहमद मीर, बारामूला यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल के सदर उमर ककरू और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडरान भी इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। फारूक शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में टंगमर के नौजवानों को खेलों के बेहतर मौक़िफ़ फराहम किए जाएंगे और बुनियादी ढांचे को भी मुस्तहकम किया जाएगा। टूर्नामेंट में वादी भर से 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच गोम अहमदपुरा और शुजपालापुरा की टीमों के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट के इनेकाद पर नौजवानों ने खुशी का इजहार किया। स्टार्ट हुआ जिसमें 64 टीमें हिस्सा ले रही है कि मतलब इससे हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पे खेलने में, कि हम यही चाहते हैं कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ आके, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के काफ़ी बड़े प्लेयर्स यहाँ से आके IPL खेले हैं, जैसे मंजूर पांडव जैसे हमारे रासिक सलाम, ऐसे ही प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि काफ़ी यूथ है अभी वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, उन्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि वो खेले यहाँ आके खेले, पढ़ाई भी करे साथ में। बस प्रीमियर लीग का बुनियादी मकसद ये है कि अपने जो हमारे टैलेंटेड यूथ हैं उनको सामने लाए, उसको हम एक्सपोजर दे दें। पहले भी हमारे नौजवानों ने लोहा मनवाया है विंटर स्पोर्ट्स में। इस इलाके काफ़ी नौजवान हैं जिन्होंने इंटरनेशनल जो है इवेंट्स में हिस्सा लिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान क्रिकेट में भी अपना लोहा मनवाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, इस इलाके का नाम रोशन करेंगे, अपनी रियासत का नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और मैं हमेशा इन नौजवानों के बैक एंड सपोर्ट पर रहूँगा, और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि जिस गाँव में भी कोई टैलेंटेड यूथ है उसको वो सामने लाएँ। मैं हमेशा इन लोगों की जो है एनकरेजमेंट करूँगा। मारूफ मजहबी रहनुमा स्वामी मिर्जा काक जी महाराज की बरसी पर अनंतनाग के हांगलगुंड कोकरनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हवन का भी एहतमाम हुआ, जिसमें मुल्क बिलखसूस कश्मीर में क़याम, अमन और खुशहाली के लिए खास दुआएं की गई, जबकि कश्मीरी पंडितों ने मकामी मुसलमानों के ताउन का शुक्रिया अदा किया और मकामी लोगों ने कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया। भाईचारा आज भी जिंदा है। यहाँ भी जो भी मुस्लिम कम्युनिटी लोग रहते हैं उनकी सब हेल्प देते हैं, चाहे बालन का हो, पानी का हो, जिस चीज़ का हो, वो सब कंट्रीब्यूशन देते हैं। और हम यही गुजारिश करते हैं इनसे भी, अगर ये अपने घरों में भी रहना चाहे हमें कोई एतराज़ नहीं है, इनकी अपनी ज़मीनें मौजूद है, वहाँ ये अपने मकान बना सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं। हमारा भी क्या बनता है, हम उसमें उनको पूरा सपोर्ट देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का भी उसमें ज़्यादा हाथ होना चाहिए, क्योंकि इनके वो घर अब नहीं रहे हैं। 23 साल की पहले की बात है, अब वो खंडरातों में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन आज यहाँ पर खाली इनके लिए एक कमरा बना है गवर्नमेंट ने आज, क्योंकि यहाँ पर आते हैं हर साल ये तकरीबन 300-400 लोग, जिसके लिए इनकी बड़ी अकोमोडेशन होनी चाहिए। ये दिन मनाया जाता है कागजी महाराज का, जोर से गुरु जी का जी। और यहाँ पे देखिए कि आप देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक आई हुई है जी। और यहाँ पे अपने लोकल्स भी जो है हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे जो रेनोवेशन होनी चाहिए थी वो थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि थोड़ा सा रेनोवेशन की तरफ ध्यान दें, कि आगे से जो भी बंदे हैं यहाँ पे आए। देखो आज तो अब थोड़े से हैं कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम सेटअप ठीक होगा तो यहाँ पे और ज़्यादा लोग आएंगे, और हमें तो फुल सपोर्ट चाहिए यहाँ के लोगों से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी। मुसलमान खतर क्यों कर्मुत मे बासान वनकन तुम मुसलमान दिल फुटरित यमिस तमिस हाजत पूर गन तो सानि वराई तिम लुक तो भाईचार कत
ڈیفنیٹلی اَسہِ سپورٹ ملان ییٚتٮ۪ن یوٚتانۍ نہٕ لوکلن ہُنٛد سپورٹ اَسہِ باسہِ سِکیور فیٖل ییٚتٮ۪ن تیٚلہِ ہٮ۪کہو نہٕ أسۍ یِتھ کٔنۍ بِہِتھ راتس منٛز ییٚتٮ۪ن کینٛہہ کیٛازِ ییٚتہِ چھُنہٕ تِتھ کٔنۍ پوٗرٕ اَسہِ اِنتظام کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ راتھ اوس لوگُن روٗد اَسہِ گٔے واریاہ دِقت ییٚتٮ۪ن راتس بوزنس بیٚہنس منٛز مگر اگر نہٕ أسۍ سِکیور آسہو ییٚتہِ مےٚ باسان أسۍ ہٮ۪کہو نہٕ یِژھِ جایہِ منٛز راتھ کٔڑِتھ کینٛہہ کیول یہِ نمتہٕ برونٛٹھ حالات ٲسۍ أسۍ گٔژھۍ بیٚیہِ تِتھے کٔنۍ یِنۍ واپس تہٕ أسۍ گٔژھۍ تِتھے کٔنۍ نمتہٕ برونٛٹھ یِتھ کٔنۍ حالات ٲسۍ تِتھے کٔنۍ گوٚژھ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تِتھے کٔنۍ أسۍ مِلژار روزُن تہٕ یکجاہ أسۍ روزُن یہِ گوٚژھ نہٕ روزُن یہِ چھُ بٹہٕ تہٕ یہِ چھُ مُسلمان. स्वामी मिर्जा काक की बरसी के मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद ने हांगुलगुंड में उनकी समाधि पर हाजिरी दी और इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की. उन्होंने कश्मीरी पंडितों को हर तरह के ताउन की यकीन दहानियां कराई जबकि मिर्जा काक को मौजूदा दौर की एक अजीम शख्सियत करार देते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया. न्यू बस स्टैंड डोडा के करीब लोड कैरियर की पार्किंग से दुकानदार परेशान हैं. दुकानदारों का कहना है कि उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है. दुकानदारों के मुताबिक उन्होंने कई मरतबा इंतजामिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई लेकिन फिर भी कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं. दुकानदारों ने इंतजामिया से इस मसले के हल के लिए अपील की है. बहुत मुश्किल हो रहा है हमको. आप देखिए, आप कैमरा घुमाएं और देखिए लोड कैरियर और ट्रक यहाँ लगे हैं, रेहड़ियां लगी हैं, चलने को रास्ता नहीं है. ये कमर्शियल अड्डा बनाया है. ट्रकों का इधर यहाँ पर अड्डा दिया था आगे अकरमाबाद में, उनको भी शिफ्ट नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं है. हम चाहते हैं इसकी नोटिस लें, यहाँ आए, यहाँ देखें दुकानदारों का क्या हाल है. देखिए यहाँ पे क्या हालात हैं. यहाँ पे दुकानदारों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. जो मतलब इस वक्त तो दुकान के अंदर जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है कस्टमर को, तो कहाँ से आएगा कस्टमर जब रास्ता ही नहीं रखा गया है. आधा बस स्टैंड शिफ्ट कर दिया, मेटाडोर शिफ्ट कर दी, बागवा काश्तीगढ़ वगैरह की सब उधर, और ये लोड कैरियर यहाँ पे ठोक दिए. बस स्टैंड ये है, बस स्टैंड ये है, यहाँ पे ट्रक है, आप देखो ट्रक लगे हैं, ये जुंगे लगे हैं. मुझको समझ नहीं आ रही. बहुत बार हम गए डीसी साहब के पास, उन्होंने कोई नोटिस नहीं ली. डीसी डोडा से, म्यूनिसिपैलिटी से ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये नोटिस लें खुद और इंसाफ करें हमारे साथ. इंतजामिया की जानिब से जारी हुक्मनामे पर अमल करते हुए महकमे एनिमल हस्बेंड्री की चेकिंग स्क्वाड ने आज गालंदर पामपोर में जम्मू से आने वाली मुर्ग और भेड़ से भरी ट्रकों की तलाशी ली, जिस दौरान उन्होंने कई मुर्दा मुर्ग को बरामद कर लिया. श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बार बार बंद रहने के नतीजे में मालबरदार गाड़ियों में मुर्ग और भेड़ की बड़ी तादाद मर जाती है, जिसके बाद उन गाड़ियों को वादी में दाखिल करने की कोशिश की जाती है. जो अनसुकरेबल एलिमेंट्स है ये यहाँ पर सब जो कोटेदार है या बूचर्स है, ये लोगों को जो गोश्त खरीदते हैं तो उनको ये जो है डेड शीप है ये उनको ज़बह करते हैं, उनको धोखा देते हैं. तो इस पस मंज़र में हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट किए हैं. मैं अभी मॉनिटर करने आया हूँ इस ट्रैकिंग स्क्वाड को. तो इधर हमने देखे हैं बहुत सारे जो ये है जो मुर्गे आ रहे हैं वहाँ से या शीप आ रहे हैं वहाँ से, उनको हमारा ये स्क्वाड ये चेक करता है ताकि कोई जो डेड शीप है या डेड मुर्गे हैं तो उनको ये लोगों को न खिलाएं, ताकि इससे हमारी जो ये सेहत पर बुरा असर पड़ता है. डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट की जानिब से टंगमर्ग में हल्का इंतखाब गुलमर्ग से ताल्लुक रखने वाले पंचों और सरपंचों का एक इजलास मुनक्किद हुआ. इजलास की सदारत DPN के सरबराह और साबिक रियासती वजीर गुलाम हसन मीर ने की. इजलास में पंचों और सरपंचों ने इल्जाम लगाया है कि मुख्तलिफ कामकाज चलाने में मुख्तलिफ दफातर से उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है. इजलास से खिताब करते हुए मीर ने कहा कि जमहूरी निज़ाम के अहम इदारों को मजबूत करने की जरूरत है. मीर ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले की नोटिस ले. हमारी जमात का मानना है कि जब तक ग्रास रूट लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो आम लोगों तक जमहूरियत का फल, जमहूरियत का माने उन तक नहीं पहुंच पाएगा. पंचायत का निज़ाम चलाने में बड़ी दुश्वारियां दरपेश हैं. गवर्नमेंट को इस सिलसिले में नोटिस लेना है कि जब
पंचायत सिस्टम हमें यहाँ चलाना है, ये अच्छी तरह से चलना है। रियासती जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोई भी इलेक्टेड बॉडी मौजूद नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। यहाँ इस वक्त अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है वो सिर्फ पंचायत से हैं। उनको अहमियत देने की ज़रूरत है क्योंकि वही चुनिंदा नुमाइंदे हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट सरपंचों की इस रेजोल्यूशन पर गौर करेगी और इस फैसले पर रोक लगाए।